जी आप नजर आ रहे हैं? जी सर। Yes, sir. It's okay. I is the current, Q is the charge measured in coulombs, T is the time in seconds, right? Time in seconds, and I is the current. ठीक है, I को कहते हैं हम current, and it is measured in amperes. Ampere. Sir, a question is Yes, formula के ampere. बारे में sir. जी 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 बताएं. Sir, जी जी 1 ampere is equal to 1 coulomb of charge per 1 second. yes, 1 ampere is given by one coulomb per second, right? 1 ampere is जी 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 बताएं. Sir, second हमेशा नीचे 1 ही होगा या टाइम वेरी कर सकता है? वेरी कर सकता है. ये इसकी डेफिनेशन है कि आपके पास 1 एम्पेयर जो है दैट इज 1 कूलम पर 1 सेकेंड. दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन. ये डिफर कर सकता है, टाइम कैन डिफर. ठीक है, ये सिर्फ इसका स्टैंडर्डाइज्ड per unit time. yes, charge per unit time. Yes, more precisely, is there is the rate of flow of charge or charge per unit time, right? This is what we have. ठीक है, so this is the current and I hope इसमें कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को. ठीक है, so the electric current is a rate of flow of charge and it is given by I is equal to Q over T and the SI unit for current is ampere. ठीक है, so we can say that the current of 1 ampere is a flow of charge of 1 coulomb per 1 second. ठीक है, इसको हम इस तरह से कहते हैं. अगर आपके पास 10 एम्पियर करंट जा रहा है कहीं पे तो इसका मतलब है एक वायर है. लेट्स दिस इज अ वायर right, and let's say 10 coulomb of charge is passing through it in 1 second, so I would say that the current in this wire is 10 amperes. अगर 10 coulomb charge 1 second के अंदर flow कर गया, that means that the current is 10 amperes, right? And the device which is used to measure the electric current is known as ammeter. ठीक है, the device that is used to measure the electric current is given by ammeter. Another very important thing about current is that we refer to the conventional current. Okay, conventional current. So what is conventional current? Conventional current का मतलब है कि आप एक current की direction को define कर देते हैं. You define a direction in which it is flowing. So this is an arbitrary direction and it is taken as the flow of positive charge. जब भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज कहीं फ्लो कर रहा होगा तो वही करंट की डायरेक्शन होगी. अब इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा. लेट्स से these are the electrons and they are going in this direction, right? So the current will flow in the opposite direction of the flow of electrons. जी, तो आपने खुद ही कहा रिवाइज करवा दें, तो आई एम गोना रिवाइज दिस. ये रिवाइज कर रहे हैं हम आप, because you were saying that sir शुरू से करवा दे, तो I am revising all of this. जी सर, चलें. The electrons are gonna go in the opposite direction to the direction of this is the current and तो इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज होता, let's say this was the positive charge and it was flowing in this direction, current will also flow in this direction, right? The current will also flow in this direction. So this is what we have. The direction of the current is in the direction of flow of positive charge. Is that clear to everyone? Yes. So this is known as, this is the direction of the conventional current and it is taken as the flow of positive charge. Okay? The direction, I'm going to write here the direction of the electric current is taken to be the flow of positive charge. सर थोड़ा सा ऊपर कर दें. जी ठीक है, ऊपर थोड़ा सा और ऊपर सर, वो फॉर्मूला देख रहा था I इक्वल टू Q बटी वाला. हसनैन को ऐड कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में उनका इंटरनेट का इशू आ रहा है. हसनैन और साम, हसनैन जो है उसको ऐड कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम इशू आ रहा है. सामिर और हसनैन, लेट्स सी, because they I've tried to add them a couple of times, number of times, but they are
there's some issue in the internet probably on their part. Acha, so direction of electric current is सर यहाँ पे ना बारिश हो to रही be है the तो flow इस वजह से probably. Acha ji, moving ahead. Uh, the device that is used to measure the electric current is known as an ammeter. ठीक है? Device used to measure electric current is known as ammeter, right? So ammeter एक device होती है. I'll show you in the lab in the school open that it is how it will measure the current. अच्छा, remember that current is always in the opposite direction to the flow of electrons. Current is always opposite in direction to the flow of electrons. I have Sir, repeated electron- this a number of. जी बताएं. इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव में जाते हैं और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है. Yes. अभी मैं बताता हूँ. दोबारा बताता हूँ. ओके सर. Right. So let's say you have a circuit. I've already discussed with you the circuit symbols, right? Let's say you have a circuit. This is a circuit symbol for. This is the circuit symbol for the battery. You know that this larger length of line is for the positive terminal. The smaller is for the negative terminal. ये negative है. फिर ये positive है. फिर इसका मतलब है ये दो batteries लगी हुई है. मतलब दो cells लगे हुए हैं. ठीक है? तो ये एक पूरी बैटरी या EMF source कह सकते हैं हम ऐसा. ठीक है? ये एक पूरी EMF source है. I call this the EMF source. ठीक है? And I can draw it in a circuit like this. Let's say this is the positive, negative, positive, negative, another cell, positive, negative. अब कितने cell लगे हुए हैं? How many cells do we have now? 3 cell. 3 cells. Very good. We have 3 cells now. Now, let's say I join the connections and let's say there's a bulb. This is the symbol for the bulb. I've already discussed with you. You have to go and open your previous notes. ठीक है? जो हमने अभी Eid break से पहले किया था. ठीक है? You have this electric bulb. And let's say you have an ammeter here, which is used to measure the current, right? And you can place the switch anywhere in the circuit. Anywhere in the circuit, doesn't matter. An ammeter as well, anywhere in the series circuit. So मैं switch भी लगा देता हूँ. This is a switch, and it is a closed switch. So the bulb will light up. Now, where would the electrons travel and where would the current go? अब आपको इस बात का ख्याल रखना है कि electrons हमेशा जो है वो negative terminal से जाते हैं. Electrons are going to go here, right? But the current is going to go in the opposite direction. Current जाएगा यहाँ से. तो usually आपको current बनाने के लिए वो कहेगा electrons बनाने के लिए usually they will not ask you to draw the direction of electrons. They will ask you always and always 99% chance 99% cases में they will ask you to draw the direction of the current. ठीक है? Electron की direction वो they will seldom ask, right? So current always flows from the positive to the negative terminal or higher potential to the lower potential. Positive is a higher potential, negative is a lower potential. सर EMF नहीं समझ रहा. अभी बताना है. Just wait for that. Okay. यहाँ तक सबको clear है? Yes sir. ठीक है? Yes. So sir. let's say if 30 coulombs of electric charge passes a point in a wire in 2 minutes, तो current क्या होगा? If you have 30 coulombs of charge in 2 minutes, तो आपके 1 by पास 4. yes. 1 by So 4 ampere. I is equal to Q over T. So Q is 30. 1/2. Time is 2 into 60. Seconds में लेके जाना है आपको. ठीक है? This is gonna be 0.25 amperes. This is a very simple example in order to find the electric current if you have charge, right? फ्रैक्शन में लिखने से मसला तो नहीं. It doesn't matter. So it's always better to write it in decimals, right? It's better to write it in decibels. Acha. Moving ahead, I've already discussed with you the circuit symbols, right? अच्छा, एक बात इसमें ये है कि आपने जब potential difference निकालना है, voltage निकालनी है, तो हमेशा आपने उस component के across लगाना है उसको, voltmeter को. This is the voltmeter. It must always be connected across that specific device.
जिसका आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। वोल्टेज इज मेजर्ड बाय द वोल्टमीटर, voltage is measured by the voltmeter, and current is measured by the ammeter. Remember that. Electric current is measured by an ammeter. सर ये वोल्ट मीटर के बारे में क्वेश्चन है। अभी जी बताएं। सर ये पहले तो ये सर वो उसके मतलब ऑपोजिट क्यों लगा होता है, और सर दूसरा मैंने एक दो डायग्राम्स में देखा सर वहाँ पे लिखा होता है नेग्लिजिबल करंट वोल्ट मीटर के पास। वोल्ट मीटर का इसलिए होता है, अभी अभी मैंने आपको, जब सर्किट्स में हम जाएंगे तो इसमें मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। वोल्ट मीटर इसलिए पैरेलल में लगा होता है क्योंकि इसका जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसमें से लीस्ट करंट फ्लो करेगा, तो इसमें करंट जाता ही नहीं है। तो आपके सर्किट में करंट इस तरह से फ्लो करता रहता है, इसमें करंट जाएगा ही नहीं, और जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा उतना पोटेंशियल यहाँ पे होगा, इसका पोटेंशियल टोटल ये दे देगा। अभी जस्ट वेट फॉर दैट। अभी मैंने सिर्फ आपको बताया कि क्या करता है, क्योंकि मैं अगर आपको अभी बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, बिकॉज आई हैव टू टेल यू, जस्ट वेट फॉर दैट। जस्ट वेट सर वोल्ट्स क्या होते हैं? जस्ट वेट फॉर दैट, मैं अब उसी पे आ रहा हूँ। ओके ओके। अच्छा, सर्किट सिंबल्स मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए थे। यू हैव अ स्विच, करंट लिखा हुआ है यार सामने। करंट इज मेजर्ड, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय। अच्छा, सर्किट सिंबल्स तो आप लोगों को दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। क्या ये कूलम्स मेजर करता है ना करंट? करंट यार देखिए, कूलम्स और चीज है, करंट और चीज है। कूलम इज द चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज Q by T। चार्ज एंड करंट आर डिफरेंट थिंग्स। चार्ज तो आपके पास एक क्वांटिटी है, और चार्ज को अगर आप टाइम पे डिवाइड कर दे, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। डोंट कंफ्यूज देम। अच्छा ओके ओके सर, ठीक है। ठीक है, ये आई हैव टोल्ड दिस रिपीटेडली, आई डोंट नो व्हाई ये क्यों आपको ये कंफ्यूजन हो रही है, बट इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज आर डिफरेंट। जी 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 बताएं सर जी। वोल्ट मीटर आप क्या कह रहे थे, वो लगता है पैरेलल टू द बल्ब वगैरह के? हाँ जी, वोल्ट मीटर अभी जस्ट वेट, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल उसके पैरेलल लगता है। हमेशा किसी डिवाइस के पैरेलल आपने वोल्ट मीटर लगाना है, और एमीटर को आप कहीं पे भी लगा दें। अच्छा, then I told you that if you have a circuit and the current is flowing through the circuit, and if the switch is closed, the current will flow and the bulb will light up. But what if the switch is open? The bulb will not light up. And a thing about short circuiting, मैंने short circuit का बताया था आपको कि अगर आपके पास एक वायर लगी हुई है कि जो उसको बाईपास कर रही है, तो करंट लीस्ट रेजिस्टिव पाथ लेता है, लीस्ट रेजिस्टिव पाथ लेता है। If you remember, I hope you remember this. alternate path। हाँ जी, alternate path. Let's say you have a circuit like this. You have a circuit like this, and this is an ammeter, and this is a electric bulb. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक वायर लगा दूं यहाँ से यहाँ पे, अब इस वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम है, मतलब यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है इसको, तो ये प्रेफर करेगा करंट कि वो यहाँ के जाने के बजाय यहाँ चला जाए। ठीक है, और ये बल्ब लाइट अप नहीं करेगा। इसी तरह से ये वोल्टमीटर हम इसलिए यहाँ लगाते हैं कि अगर आपके पास ये करंट जा रहा है तो इसका क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस, तो करंट प्रेफर करता है वो बल्ब से गुजर जाए, यहाँ से ना गुजरे। यही वजह होती है कि हम पैरेलल में लगाते हैं तो सर्किट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, सर्किट में करंट उसी तरह से फ्लो करता रहता है। ठीक है, इज दैट क्लियर शहीर? सर ये वोल्ट मीटर की मतलब एक क्वालिटी है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है ताकि सर्किट डिस्टर्ब ना हो। जी, और पोटेंशियल डिफरेंस ये देता है, वो अभी हम उस पे आते हैं। बिल्कुल सर, मेरा से बात पूछी सर, ये टॉपिक हमने पहले कर तो लिया था, आप पहले कहा नहीं थे टॉपिक यार। कुछ बच्चे अली अहमद कह रहे हैं और भी एक दो कह रहे हैं कि हम रिवाइज करवा दें, तो दैट्स व्हाई मैं, क्योंकि आप फॉर्मली 11th क्लास में आप आ गए, दैट्स व्हाई आई एम रिवाइजिंग दिस। ठीक है, हम अब ठीक है सर, रिवाइज करेंगे सर, समझ तो आ रही है, कांसेप्ट तो आ रहा है पिछला। अरे वो इजी हो जाए अब यार। अच्छा प्लीज इजी भाई, इजी। अच्छा, so the reason that we have a wire here, ठीक है, that will cause the bulb not to light up is because the current will flow in this wire. The current will prefer to flow in this wire. It will not flow through this bulb because this wire has a very less resistance. Resist कम कर रहा है उसको, कोई रुकावट ही नहीं है। जब किसी चीज में कोई रुकावट ही नहीं है तो वो पानी, अगर पानी ने एक जगह से जाना है
दो पाइप्स हैं, एक पाइप के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो ब्लॉकेज है, ठीक है, एक पाइप बिल्कुल खुला हुआ है, तो पानी कहाँ से जाएगा? पानी वहीं से जाएगा जहां पे ब्लॉकेज नहीं है। तो यहाँ से भी इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, इसको प्रेफर करेगा वो यहाँ से जा जाए, बल्ब लाइट अप नहीं करेगा। सर इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जी जी, सबको क्लियर है? यस जी जी, बता। रिपीट कर सर। मैं ये जो बात आपने कह रहा अभी बताया, हाँ, मैं ये बात कह रहा हूँ कि लेट्स से आपके पास ये शॉर्ट सर्किट तब होता है, बल्ब लाइट तब नहीं करेगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ, बल्ब विल नॉट लाइट अप। व्हाई द बल्ब विल नॉट लाइट अप? बिकॉज you have a wire which is of very low resistance, मतलब it's a wire, it's a simple wire, और वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस का मतलब है रिस्ट्रिक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने रेजिस्टेंस का टॉपिक करते हैं, इसलिए उसमें जाके आपको और ठीक है। तो करंट क्या करेगा? करंट जब इसमें से फ्लो करेगा वो प्रेफर करेगा वो ये वाला पार्ट चूज कर ले, क्योंकि यहाँ पे कोई इसको हिंड्रेंस नहीं है। इट विल चूज दिस पार्ट इंस्टेड ऑफ दिस, so the bulb will not light up and this would be a short circuit. This would be अच्छा a ठीक है short सर, circuit. थैंक यू। ठीक है, now I'm going to move towards आधा करंट उधर जी, चला जी। जाए, आधा करंट उधर चला जाए। नहीं, वो करंट तब हो जाएगा जब अगर उनकी रेजिस्टेंस सेम होगी, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है बल्ब की से, ठीक है। ये वायर के अंदर अगर कोई रेजिस्टर लगा होता तब करंट डिवाइड हो जाता, लेकिन अभी करंट डिवाइड नहीं होगा। जस्ट वेट फॉर दैट, जस्ट वेट फॉर दैट। मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF. What is the difference between electromotive force and potential difference? सर any इलेक्ट्रोमोटिव idea? फोर्स मैं बताऊं सर जी। जी बताएं। EMF of a cell is defined as the energy converted from non-electrical forms to electrical form when 1 coulomb of positive charge passes through the cell. Very good. But why you are pronouncing this definition? इसके आपको जो background है वो ये सर है मेरी बात सुन, कि सर मेरी बात सुन, सर मैं बता, बुक खोल ले दो पीछे। सर इसका ये तो नहीं था कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो थी नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल कैसे है? लेट्स से यू हैव अ सेल और बैटरी। बैटरी के अंदर क्या होता है? बैटरी हैज केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी इज नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Sir, And- it converts the electromotive force. just सुन ले पहले मेरी बात, just listen. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स। ये साइंटिस्ट ने नाम रखा है इसका फोर्स क्योंकि उन्हें लगा शुरू में कि दिस इज अ फोर्स, बहुत पहले, but later scientists discovered that this is not a force, but since the name was discovered already, they kept the name the same, right? So EMF is the energy converted from non-electrical. Non-electrical क्या है यहाँ पे chemical energy है, ठीक है। Non-electrical forms to electrical forms when 1 coulomb of charge passes round a complete circuit, ठीक है। आपके पास 1 coulomb of charge अगर पास करेगा round a complete circuit, तो जो नॉन इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, दैट इज व्हाट वी डिफाइन एज EMF। मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रिकल इज द सेल और द बैटरी, जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। नॉन इलेक्ट्रिकल वो आपके पास सेल या बैटरी है, और जो करंट बन गया आपके पास, दैट इज द इलेक्ट्रिकल, राइट? दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। करंट जब पास करेगा तो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। Is that clear to everyone? Yes. तो ये जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये सेल्स और बैटरी से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, सोर्स से प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम इसे EMF सोर्स कहते हैं। EMF सोर्स कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी कन्वर्टेड बाय सोर्स, ठीक है। सोर्स क्या है यहाँ पे आपका सेल और बैटरी सोर्स है। तो मैंने आप लोगों को लिखवाया था एनर्जी कन्वर्टेड बाय सोर्स। एनर्जी मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसके अंदर। सर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किस तरह होती है? क्योंकि आपके पास sir, कैसे convert जो होती है, sir? बैटरी है, बैटरी जो है वो जब चार्ज मूव, बैटरी जो है वो प्रोवाइड करती है एनर्जी, और वो चार्ज प्रोड्यूस होता है, चार्ज मूव करता है, तो वो आपके पास करंट होता है ना, दैट इज द करंट। जो आपके पास जो बैटरी है दैट हैज अ केमिकल एनर्जी, इट पुशेस द चार्ज, सो दैट कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जब वो पास करेगा करंट उसमें से डिवाइस के अंदर से, तो उसमें से लाइट भी प्रोड्यूस होगी, हीट भी प्रोड्यूस होगी,
Is that और clear? सर ये जो लाइट और हीट है ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल से नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, जो कि फिर पोटेंशियल डिफरेंस आता है ना? हाँ जी, अभी वो मैं बताता हूँ, जस्ट वेट फॉर दैट। ये देखें, एक्सप्लेन दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डी पार्ट। कौन सा केमिकल डालते हैं? या डिफरेंट केमिकल्स होते हैं आपके पास, लेड एसिड बैटरीज होती हैं आपके पास, कार की बैटरीज होती हैं, दे आर डिफरेंट, सल्फ्यूरिक एसिड, लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? बट यू हैव टू कंसीडर हियर दैट ये डी पार्ट देखें जरा, दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज मेजर्ड बाय एनर्जी डिसिपेटेड बाय अ सोर्स इन ड्राइविंग अ यूनिट चार्ज राउंड अ कंप्लीट सर्किट। आपके पास जो सोर्स है, सोर्स आपके पास क्या है? आपके पास बैटरी सोर्स है, सो एनर्जी converted by a source in driving a unit charge round a complete. Is that clear to everyone? यस सर। ठीक है, सोर्स आपके पास बेसिकली बैटरी है, तो ये आपके पास ईएमएफ, इसको हम ईएमएफ कहते हैं। एनर्जी कन्वर्टेड बाय अ सोर्स और डिसिपेटेड बाय अ सोर्स, ये लिख लें, ईएमएफ is measured by the energy dissipated by a source in driving a unit charge round a complete circuit. ये लिख लें, अभी लिखें ये। And it is, जो ईएमएफ होती है आपके पास, ये हमेशा सेल्स, बैटरीज या सोर्सेज में होती है, ठीक है? ये आपने याद रखें। अली अहमद, आपको भी क्लियर है? आप पूछ रहे थे क्योंकि मुझसे ईएमएफ का, सबको क्लियर है? अली अहमद, Yes. since you were asking, जी सर एक दफा रिपीट कर दें। हाँ, मैं बताता हूँ। ईएमएफ इज द एनर्जी कन्वर्टेड बाय अ सोर्स, सोर्स इज द बैटरी और द सेल, ठीक है? आपके पास बैटरी है या सेल है, दैट इज द सोर्स, ठीक है? तो उसमें जो एनर्जी कन्वर्ट होती है इन ड्राइविंग अ यूनिट चार्ज राउंड अ कंप्लीट सर्किट, दैट इज द ईएमएफ। मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। दिस इज द ईएमएफ सोर्स, यू सी, दिस इज द ईएमएफ सोर्स। लेट मी ड्रॉ इट अगेन फॉर यू। दिस इज, लेट्स से दिस इज द सेल, दिस इज द बैटरी। अब जब इसमें से चार्ज पास करेगा, ठीक है, तो जो एनर्जी डिसिपेट होगी इन ड्राइविंग यूनिट चार्ज राउंड कंप्लीट सर्किट नोन एज द ईएमएफ। इसलिए ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज और एनर्जी पर यूनिट चार्ज। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ईएमएफ, ठीक है? ठीक है, आपके पास जो इलेक्ट्रिक सेल्स हैं वो सोर्सेज हैं, आपके पास नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हो रही होती है वो कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे कन्वर्ट हो रही होती है? आपके पास जो जब चार्ज मूव करता है तो वो एनर्जी डिसिपेट करता है, जब वो किसी डिवाइस से पास करता है तो एनर्जी डिसिपेट होती है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपके पास नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट हो जाती है, राइट? नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है जब आपके पास सेल्स के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है वो करंट प्रोड्यूस, दैट Your battery is low, sir. chemical Battery is energy low. converted, okay, it's सर बैटरी लो होने की वजह से आपकी आवाज बहुत ज्यादा अटक रही है। यार वो मेरे घर में इंटरनेट में, एक मिनट, लेट मी सी दैट।